Hello everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. Thank you so much for watching and thank you so very much for commenting. Your comments, they're so positive. They just make me so happy and it also tells me that okay, the purpose, the reason why I opened a YouTube channel that is being fulfilled. And even though it's not to a lot of people, but even like the people who I'm catering to, I am so glad, so glad. So let's start. Today I'll be doing the evening shift analysis, only the first 25 questions of UGC NET 2021 first December wala paper. So let's get started. What I'll tell you here is there are two, three things. First, why a question came. Second, how it could be done even if you did not know the answer. And um, and what you have to do for the future, like the next exam that you appear for. What do you analyze from this paper, right? Three things I'll be focusing on. Let's go to the first question. I will classify this as an easy question. You should have known it if you were a serious aspirant. Everybody knows Homi Baba's location of culture. Everybody. It has been asked, it is prescribed in universities. It is such a famous text that you should know it in detail. This is just a surface level question, right? So, A2. Homi Baba's location of culture. There's only one option which suggests that. So the answer you have. But still, I would tell you about the other options too. Like, for example, T.S. Eliot, for that matter. You read a lot of works about T.S. Eliot, but you don't really know about notes towards a definition of culture. But that's okay. But see what they've done. They've given you this thing, ki and now you have to know this. There is full chance that they are going to ask you it in the next 2-3 years. They will ask you about T.S. Eliot's notes towards definition of culture, right? Roland Barthes' image music text. If you're a serious aspirant, you would have known it. This is a commonly read text, right? It is prescribed also. John Fiske. This is important and interesting. John Fiske is one person I did not read when I was in my graduation or maybe the first 2 semesters of post graduation. So when I did the previous year questions, 2019 question paper, when I saw in a single paper, there were two questions, out of which in one question there was John Fiske in the question itself, and in the other one it was in the options. So a single name repeated twice in the same paper. So you know the importance. And again they've asked you this time. That means and the answer is John Fiske reading the popular. This means that next time when you go to the exam, you have to know John Fiske very well. Not just the first paragraph of Wikipedia, but a little beyond that you would have to go because they've been asking him quite frequently now, right? So that is my analysis of this question. Question number two, easy. I answered it wrong. Um, because I thought that maybe because you have online media, you have social media, you have mainstream media, so I felt that perhaps you have a lot of sources. What I did not understand was the examiner was looking at the perspective from the perspective that is one dispenser and a lot of consumers. That I did not think of. So answer would have been it usually has a central single source, right? Okay. Maybe not easy actually. This question was a little confusing, huh? Okay, question number three. Interesting question. You should have known it. The life of Cowley. In case you're a beginner, life of Cowley. All of this comes in the metaphysical poets. People who were there in the Jacobean age, who were writing about who were using metaphysical conceits. Those very what is it called? Very stark kind of combinations brought together, right? So they that you would know. And life of Cowley is an important part of the metaphysical poets wala जो सैम्यूल जॉनसन ने लिखा है. So you're not expected to read it in detail, even though they ask you questions in good detail from this portion, from Samuel Johnson's work, The Life of Cowley. Or there are other people also, the 52 poets whose lives Samuel Johnson has talked about. So they ask you questions, but that's in detail. So you can't be expected to read the entire thing. There will be people who will tell you, read the entire thing. When are you going to read the entire thing? But you have to develop that understanding, and you should know that what metaphysical poets were like. Basic idea would do. Now I'll tell you what how these options, I'll derive these options, right? So that metaphysical conceits they used, that was very different from the ordinary people. That was not the order of the day. No, people were not writing like that. So they were definitely different, right? They were different. Look at the fourth option, D option. They never tried to be singular in their thoughts. Really?
No, of course not. They were singular, and I don't know if they tried or not, but they definitely were single. So this never tried, which is a very extreme statement, is anyway wrong, right? So what is the option? What are the options left? B and D you eliminate, C and D you eliminate. The third and fourth option. What you're left with is A and B or B and C. Now one thing is for sure that B is correct. Instead of writing poetry, they only wrote verses. Now if you ask me what this statement means, I have no idea. But if I get to know, I'll write it down in the comments. क्योंकि मतलब I thought poetry and verses is like same only. I did not know the difference. But if you know and you think you have knowledge on this, do write it in the comment section. It will help the all of us, right? Um, okay. अब दे नाइदर कॉपीड नेचर नॉर लाइफ पॉसिबल है यार, क्योंकि जब आप नेचर को कॉपी करना, लाइफ को कॉपी करना, दिस दिस डज नॉट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉपिंग नेचर? नेचर कैन मीन टू थिंग्स हियर। वन, एक तो आपका जो नेचुरल बैकग्राउंड है, दूसरा ह्यूमन कैरेक्टर्स जो नेचुरल है, जो ह्यूमंस द वे दे बिहेव, द वे they do everything that. But that was definitely not the case with metaphysical poets, because they were completely into a different kind of zone. They were writing about things which were not related, metaphysical conceits. Look, just take the example of John Donne's Flea. Everybody does it. It is a very important poem. So John Donne's Flea, when you read, you know what he's talking about. He's talking about the blood of the male and the female getting mixed in the flea. Now that is not copying life or copying nature, right? That's one example. So obviously C is also wrong. What are you left with? No, wait. Yeah, C is right. C is right. So they do not. That's right. They do not copy nature and life, right? So C is right and D is wrong. So you're left with only one option, which is B and C. Now, even though you'll feel that okay, you don't know poetry and verses, but you can always say ki, okay, you are sure about C being the right answer and D not being the right answer, right? Okay. Um. Right. Okay. Question number 4. This is a very, very, very easy question. When I did the paper, I knew all the answers, like all the options I could. I did not need to see kaun sa kiska hai. Simply, I knew ki A Handful of Dust has been written by Evelyn Waugh. It has been asked so many times. You should know it. E.M. Foster has written Howard's End. Now, I'm not sure if this has been asked or not, but E.M. Foster is very important. His works are asked practically every year. So this time around also you have this question, right? Howard's End. I think there was one time there was this question of the Celestial Omnibus, again written by E.M. Foster. So E.M. Foster is asked a lot. So you should know. Howard's End is his famous. Yes, it has been asked. I'm so sorry. How can I forget? It has been asked. A detailed question has been asked from Howard's End, and you have to know the detailed summary of Howard's End. It is important. I just remembered. I'm sorry. Okay. D.H. Lawrence, The Plumed Serpent. You don't have to go into the details, but you should know the basic storyline. But because they asked this time, this becomes very important for the next attempt. So you should know this in detail. Otherwise, in general, if I talk about it, Plumed Serpent is not as important as Sons and Lovers, or maybe The Rainbow, or what is the other one? Um, Women in Love, right? These are very important works, right? So maybe not that much, but yes, this is important too. Now, you know why DH Lawrence? Like literally, you should know, because DH Lawrence ki to literally they ask you chronology, they ask you characters. DH Lawrence is so important that they want you to read DH Lawrence in much detail, a lot of detail, right? Then Aldous Huxley, Graham Greene. So Graham Greene, of course, Brighton Rock is the answer, and Aldous Huxley, Those Barren Leaves is the answer. Anyway, but this is easy. And Graham Greene also is a repeated writer. इतनी बार पूछा जा चुके हैं ये. ग्राहम ग्रीन के आपको सेटिंग्स पूछी जाती हैं स्पेसिफिकली कि अच्छा इनकी ये वर्क कौन से सेटिंग में है, ये कौन से में है. दैट इज़ अ क्वेश्चन. बहुत पहले आता था, अब उतना नहीं रहा है. नाउ यूजीसी हैज़ फोकस्ड मोर ऑन क्रोनोलॉजी रादर देन योर थोड़ा डेप्थ में नहीं जाते. वो आप देखते हैं, आपको पता भी है कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे है, किस ज़माने में है. एंड दिस हेल्प्स वेरी मच व्हेन यू नो द क्रोनोलॉजी. यू विल बी एबल टू गेस कि अच्छा इसमें इस टाइप के ओपिनियंस होने के चांसेस है ना. यू हैव टू डेवलप दिस चांसेस वाला थिंग. यू कैन नॉट बी मेमोराइजिंग प्रैक्टिकली एवरीथिंग. ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं है ना यार. वो गेस वर्क कैसे आएगा? बाय नोइंग व्हाट यू नो वेरी प्रॉपरली. अगर मुझे पता है कि डीएच लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स हमारे सिलेबस में था, ठीक है, आई हैव डन दैट इन डिटेल, गुड डिटेल.
सो फ्यूचर में डी एच लॉरेंस का कोई भी वर्क आएगा, आई वुड बी एबल टू गेस दैट ओके डी एच लॉरेंस कैन राइट सच अ थिंग एंड ही माइट नॉट राइट दिस थिंग, क्योंकि दैट इज नॉट वेरी like that does not go well with the kind of works he was writing, right? Right. So the next question, what is the answer? Let me just do the answer once. E.M. Foster, Robertson, 1C. I mean AC. What is this here? Oh, sorry. E.M. Foster. क्या कहाँ वन का सी, हाँ वन का सी is only one option. The second option, one का सी, मतलब they don't even want you to know the others. Even if you know one thing, you would be done. This was a very simple question. Okay, this question you should have known. And WB Yeats, I understand that you might not be aware about the Wild Swans at Cool or maybe Adam's Curse. I had heard the poems' names, but I had no idea about the chronology because we do not really. I mean, these are not that important, right? So I knew the Second Coming and among school children. These are very, very, very important poems, and you have to know them. And W. Beats himself is very important. Questions on him have been asked repeatedly. His connection to India, because W.B. Yeats wrote the preface to the English translation of Gitanjali by Rabindranath Tagore, right? So W.B. Yeats has an Indian connection, and I've told you a lot of times whenever somebody has an Indian connection, examiners seem to be interested in him. I don't know why that's the case, but I've seen this. I will give you a lot of examples later on. If you see an Indian reference, you should know it, right? So, okay, I did not know what about Swans at Cool and Adam's Curse, but I knew about the Second Coming and among school children. I knew Second Coming came first, and among school children came later. I have only one option, which gives you that, which is the last one, B and then C. In rest, all of them, C has come first and B has come later. Now you're seeing the examiner. Now examiner is intelligent. He wants to confuse you, but he does not want you to be put into some like put into a place where you are so confused. क्या बोल रही हूँ यार मैं, मतलब he is telling you, he's trying to test you. If based on the less knowledge that you have, can you still derive the answer? Can you still be composed and calm enough that after seeing chronology of दो ऐसे वर्क्स जिनका आपको नहीं पता है, आप दो वर्क से क्या कोशिश कर रहे हो उसको सही आंसर पे लाने की? आई थिंक दैट इज द प्राइम पर्पस, क्योंकि नहीं तो वो ऑप्शन स्टफ बना सकते थे ना, सी और बी। सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें बी पीछे और सी आगे है, राइट? तो आई मीन दे आर इंटेलिजेंट पीपल एंड दे विल नॉट आस्क यू एनी थिंग इन द वर्ल्ड। एंड कई बार तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, सिर्फ एकदम ऐसे आओ बिग बाहर से क्वेश्चन आते हैं, तो वो करने भी तो नहीं होते हैं ना, मतलब कट ऑफ तो उतनी ही जा रही है। और जो ये टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस बीच में आ जाते हैं, दीज आर मोस्टली ऑलमोस्ट लाइक कि अगली बार के लिए आपको ये आना चाहिए, अगली बार वो आपसे क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछेंगे। अभी अब मेरा बहुत मन कर रहा है बताने का, थोड़ा सा बाहर से है बट ओके। इस बार सूसन संतोख दो बार सेम पेपर में दो बार आई हैं वो, या तो ऑप्शन में थी या क्वेश्चन में थी। I have never heard of her name, but her or his name, I don't know. But this is now my responsibility that before I sit for the next exam, I should have a page of notes ready on Susan Sandok because she has been emphasized this time, right? Okay. Question number 6. This was a tough question. I don't think I need discussion. I need to discuss this or anything. The answer is Althusser. How it is, I have no idea. I have done Frederick Jameson, Althusser, Terry Eagleton. They've been asked a lot of times. Herbert Marcuse, I did not really know so much about him, but these three I knew. And still, I felt that I could not answer this question. And I obviously answered it wrong. The answer is Althusser, but there's no way you can guess if you do not know. Question number 7. A truth about me. This, this is considered a tough question. I will also consider it a tough question. I happened to have read it. This was given in, I was just going through this university syllabus of a particular university or college. I don't remember. A central वाली यूनिवर्सिटी होगी। तो क्या कहते उसका, आई वॉज सीइंग द सिलेबस एंड उसमें आई फाउंड दिस आउट, and from there I kind of remembered, and this was not a very easy question, and even if you did not know, that's fine. Okay, now this is not the only thing, there's another part to it. I also knew it because we had it in our syllabus at one point of time. That's a separate issue that I had forgotten that we've read it. So that I kind of revised with that central university syllabus, and I was like, yeah, we also had this in the exam, right? So I won't say that you should have known it or anything. If you did not know, completely fine. This question is not going to determine your cutoff or would not make you in or out. You don't have to get the easy questions wrong, right?
Question number 8, very logical question. I mean, if you have a basic idea of history, you can answer it, but I do not expect you again to know it. So the answer to this question would be D first, because if you know, fortification started from Calcutta. That was the first time they fortified their territory, the East India Company, and from Calcutta it started, right? So this was obviously the first thing, because obviously first they would start establishing themselves. Huh? They can't just be there in the administration and then introduce rules like the option A and B says, Persian is the official language, or maybe arrival of Charles Grant. That can't happen ideally. D has to be first, that's sure, right? And you know, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करने से पहले उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी होगी, मतलब पॉसिबिलिटी है ना? ऐसा नहीं होगा कि पहले यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश, क्योंकि यूनिवर्सिटीज विल कम इन लेटर, है ना? दिस इज फॉर द जनरल गुड। उससे पहले उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए पर्शियन को रिप्लेस करना ज़रूरी है। तो इतना पक्का है कि ए सी से पहले आएगा, ठीक है? और इससे आप एक और ऑप्शन एलिमिनेट कर दो कि ऑप्शन नंबर 4 बचे क्या, बी और सी। अब आप इसमें या तो कह लो कि मतलब गेस भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें अराइवल ऑफ चार्ल्स ग्रांट है ना, अगर आपको थोड़ा सा भी आप पढ़ोगे, जब आप इंग्लिश इन इंडिया पढ़ोगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा। तो आपको पता होगा कि चार्ल्स ग्रांट वॉज कॉल्ड, ही काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश, राइट? सो अब आप देखो ना, इंग्लिश ए रिप्लेसेस पर्शियन एज ऑफिशियल लैंग्वेज। इस बी वाले ऑप्शन में भी वो यही बोल रहे हैं कि चार्ल्स ग्रांट ने इंग्लिश जो जिन्होंने इंग्लिश इंट्रोड्यूस की थी वो। तो that's not a possibility कि वो ऑप्शन सी के बाद आए, ए और बी। सो इट हैज़ टू बी डी एंड सी हैज़ टू बी लास्ट। आई डोंट से अबाउट ए एंड बी, यू कैन नॉट नो कि इसमें से पहले कौन आया बाद में कौन आया, इफ़ यू डू नॉट नो। बट देन यू ओनली हैव वन ऑप्शन विच स्टार्ट्स फ्रॉम डी एंड एंड्स फ्रॉम सी, विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड। सो यू शुड नो इट, यू शुड हैव डन इट इफ़ यू हैड अ बेसिक नॉलेज। इवन इफ यू डिडंट, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चंस करने नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आप पर आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपका गैस नहीं लगेगा। जहाँ पे आप दो ऑप्शंस में बच जाओगे ना, वहाँ पे आपके कहीं ना कहीं गैस लग जाएगा। सो मतलब इट हेल्प्स। आई मीन, नहीं लगते हैं गैसेस, आई अंडरस्टैंड, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जिनके दो क्वेश्चन, दो में दो ऑप्शंस बचते हैं, तो वो गलत वाला टिक करती हूँ मैं। ऐसा जब आपको नॉलेज थोड़ा ठीक आ जाएगा ना, आपको मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी नॉलेज पे और आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है, उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप कर पाएंगे। आपके फिर सारे क्वेश्चंस गलत ही नहीं होंगे जो गैस मारोगे, आप गैस इंटेलिजेंटली मारोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आई टेल यू मेरा दिमाग कैसे चला इसमें पेपर में, जो नहीं चलना चाहिए था वैसे, बट अब देखो, उर्वशी बुटालियाज द अदर साइड ऑफ साइलेंस। पहला काम तो ये आपको पता होना चाहिए आज के बाद उर्वशी बुटालिया कौन है, क्योंकि एक इन डेप्थ क्वेश्चन है। यू शुड नो उर्वशी बुटालिया कौन है, एंड नेक्स्ट टाइम यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, मतलब कोई मतलब चांसेस हैं कि दे विल आस्क यू, है ना? बट अगर अब तो मुझे पेपर में तो सॉल्व करना है, कैसे करूँ? देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या है। टू अंडरस्टैंड द पार्टीशन एज समथिंग मोर देन अ पॉलिटिकल डिवाइड। ओके। टू foreground a personal history of partition. Okay. To foreground the partition as an event more tragic than the Holocaust. Holocaust? Maybe. हो सकता है। To find and unite families separated at the partition. ऐसा तो वो क्यों ही लिखेंगी यार, मतलब find and unite families, how can she even do that? I mean, देर इज लेस चांस है। ये जो ऑप्शन 4 था, ये ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कोई जर्नल लिखा या डायरी एंट्री टाइप है, वो किसी को मिल गई, बट दिस सीम्स टू बी मोर लाइक द अदर साइड ऑफ साइलेंस, ऑलमोस्ट लाइक टेलिंग कि क्या हुआ था रादर देन यूनाइटिंग, एंड वो तो इट्स नॉट, it doesn't make sense, right? I don't know if I am making sense, but if you think you disagree, write it down in the comments. I'll try to explain my point. I can be wrong, but okay. बी, टू फोरग्राउंड अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन। ये सही लग रहा है यार, ये सही लग रहा है, दिस इज पॉसिबल। आप नॉवल में यही तो करते हो ना। टू फोरग्राउंड द पार्टीशन एज एन इवेंट मोर ट्रैजिक देन हॉलोकॉस्ट, पॉसिबल है, लेकिन नहीं भी पॉसिबल है। ए, टू अंडरस्टैंड द पार्टीशन एज समथिंग मोर देन अ पॉलिटिकल डिवाइड, पॉसिबल है। ए और बी स्टेटमेंट्स इतनी जनरल हैं कि आप एक गलत नहीं बोल सकते। अगर कोई पार्टीशन पे नॉवल लिखा है तो ऐसा पॉसिबल है कि उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल बात ही की होगी। हम जब थीम्स भी आंसर करते हैं पेपर में, कितने थीम्स होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, ये वो। दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, राइट? टू अंडरस्टैंड पार्टीशन एज समथिंग मोर देन अ पॉलिटिकल डिवाइड, तो दिस इज पॉसिबल। टू फोरग्राउंड अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ए एंड बी सबसे करेक्ट ऑप्शन हैं। इवन दो मैं पेपर में, क्योंकि पेपर में ना टाइम नहीं होता है इतना दिमाग लगाने का, तो I got confused in the paper. I did B and C, or maybe yeah, B and C I did, I think. Yeah, I did B and C because I thought कि एग्जामिनर होलोकॉस्ट का एग्जाम्पल क्यों लाएंगे कहीं से, उनके दिमाग में कहाँ से आएगा।
बट आई वॉज रॉन्ग एंड आई हैव ऑल्सो सीन दिस कि जो ऑप्शन में जितना डिटेल होता है ना, यूजुअली अदर एग्जाम्स के लिए क्या रहता है कि डिटेल अगर ज़्यादा है तो वो यूजुअली करेक्ट ऑप्शन होता है। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर डिटेल है, कुछ एग्जाम्पल है जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मन करेगा आपका उसको टिक करने का, वो यूजुअली गलत होता है। अब ये यूजुअल है, चाहे तो आप भूल जाओ मैंने अभी क्या बोला 1 मिनट पहले, क्योंकि ये यूजुअल है, हमेशा नहीं होगा, ठीक है? दिस इज़ जस्ट द लास्ट रिज़ॉर्ट, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है फिर आप ऐसा सोचें। पर अभी पहले तो आपको इंटेलिजेंटली वो निकालने की कोशिश करनी है आंसर। ये निकल सकता था क्वेश्चन पेपर में, बट आई डिड इट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 10, आई न्यू जस्ट वन ऑप्शन, आई न्यू दैट जूडिथ राइट हैज़ रिटन वुमन टू मैन। अब जूडिथ राइट एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, सो यू शुड नो अबाउट जूडिथ राइट इन डिटेल एंड हर वर्क्स। पर एक चीज़ आप और देखेंगे, जूडिथ राइट के वर्क से कभी भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आता, अगर कई बार आता भी है तो इट्स सर्फेस लेवल। कई बार स्टोरी से पूछ लेते हैं पर बहुत सर्फेस लेवल, ऐसा नहीं आएगा कि कैरेक्टर्स पूछेंगे या ये वो। तो आपको पता है कि कितना जूडिथ राइट में डिटेल में जाना है। अब अगेन दे आप आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, नाउ वुमन टू मैन आई न्यू, सी इज द राइट ऑप्शन, बट आई डिड नॉट नो इफ इट इज़ मेडिटेशन ऑन अ बोन और द ओल्ड प्रिजन। तो ये प्योर गेस है, 50-50 चांस है, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, मेरा नहीं चला, मेरा गलत था। सो वुमन टू मैन एंड द ओल्ड प्रिजन वॉज द आंसर। या क्वेश्चन नंबर 11, ये तो मतलब ऐसे था कि मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है ऐसे भी। एंड माई फर्स्ट अक्वेंटेंस विद पोएट्स इतनी बार पूछा जा चुका है कि आपको ये आना चाहिए, डिटेल में आना चाहिए, क्योंकि ये मतलब दे सीम टू लाइक दिस दिस वर्क वेरी मच, दे आस्क यू डिटेल्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। ये तो फिर भी सरफेस लेवल है, ठीक है। विलियम हैजलिट इसका आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 12, इस ये थोड़ा ना आई डोंट नो, आई मीन आई हैड रेड कि एफ आर लिविस's वर्क न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री है, बट दैट इज़ ऑल आई न्यू, आई डिड नॉट नो कि उसमें अंदर उन्होंने किस किस को वो किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री इंपॉर्टेंट नहीं था। क्योंकि मतलब दिस हैज़न्ट बीन आस्क्ड इन नेट एटलीस्ट आफ्टर 2012। पर स्टेट सेट्स में ये पूछा जाता है, तो आई हैड जस्ट अ बेसिक याद कर लिया था बस कि हाँ, एफ आर लिविस न्यू बीइंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, दैट्स इट। सो द बट अगर आपको किसी बाई चांस अगर आपको पता चलता है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, पहला ये विकिपीडिया पे पता नहीं है, शायद नहीं है, पर आप पहला खोलेंगे, उसमें गुड रीड्स का आर्टिकल है, उसमें मिल्टन, शेली इनके नाम लिखे हुए हैं। और जब भी किसी ऑथर का नाम लिखा हुआ है ना और वो इंट्रोडक्शन में लिखा है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है। एक ऑथर ने किसी और ऑथर के बारे में कुछ कहा है, देन दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। आपको पता होना चाहिए किन दोनों के बारे में बात हुई है, किन तीनों के बारे में बात हुई है। और ये तो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, मिल्टन को कौन नहीं जानता, शेली को कौन नहीं जानता, राइट? इंपॉर्टेंट राइटर्स। अगर तो होते कि हाँ, आपको नाम भी नहीं पता, कुछ नहीं, तब नहीं पता होने की ज़रूरत। पर जब इतना मेजर रेफरेंस है ना किसी टेक्स्ट का, देन यू शुड नो, ठीक है? बट दिस क्वेश्चन वाज़ डिफिकल्ट क्योंकि आपको यही नहीं पता होना था कि न्यू बिगिनिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री इंपॉर्टेंट है ना? मतलब मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13, ये दिस वाज़ एन ईज़ी क्वेश्चन एंड यू शुडंट हैव अटेम्प्टेड इट रॉन्ग। स्पीच एक्ट थ्योरी, आप जेएल ऑस्टिन पूछा जा चुका है, जॉन सेarle पूछा जा चुका है। आप बस जेएल ऑस्टिन टाइप करो विकिपीडिया पे, अभी वीडियो पॉज़ करो, जाके टाइप करो विकिपीडिया पे। आपको पहली लाइन ही ये मिलेगी दैट दे हैव दैट जेएल ऑस्टिन हैज़ वर्क्ड ऑन द स्पीच एक्ट्स। पहली लाइन में लिखा है। सो यू शुड नो इट, ये आंसर सही होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज़ एन ईज़ी क्वेश्चन। यू शुड हैव नोन दैट महाभारता के बहुत पहले, यार बहुत पहले, इतना तो पता होगा ना आपको, तो बी पहले आएगा। ओके, 4 के चारों में बी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद आपने प्रेमचंद यार पढ़े होंगे, ही इज़ वन राइटर दैट यू कैन नॉट मिस। एंड ये आपको पता होंगे कि प्रेमचंद यूज्ड टू राइट काफ़ी पहले। और अपना रस्किन बॉन्ड इज़ अ वेरी रीसेंट राइटर, इनफैक्ट माई आई रिमेंबर दिस बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड शी गॉट हिज ऑटोग्राफ। सो तब मुझे आई न्यू दैट दैट मीन्स ही इज़ अ रीसेंट राइटर। एनी वे आई न्यू क्रोनोलॉजी में मैंने याद किए थे रस्किन बॉन्ड, बट बिकॉज रस्किन बॉन्ड हैज़न बीन आस्क्ड, तो अगर आपको बेसिक सा जनरल नॉलेज है कि हाँ जी रस्किन बॉन्ड, यू नो, यू स्टिल टॉक अबाउट हिम, स्टिल नॉवेल्स अभी रिसेंट के हैं, तो यू वुड हैव नोन। बट स्टिल आपको नहीं भी पता कोई बात नहीं, पर आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्रेमचंद बहुत पहले लिख रहे थे, तो महाभारत के बाद प्रेमचंद ही थे। तो बी के बाद डी एक ही ऑप्शन में है, उसके बाद रस्टी है, द रूम ऑन द रूफ, एंड उसके बाद पनेशाचार्य है, संस्कारा। अब संस्कारा इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, आपको ये डिटेल में आना चाहिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है।
कैरेक्टर्स के नाम भी पता, मतलब पता रहे तो बेटर होता है। इवन दो आई सॉ कि इस बार बहुत कैरेक्टर्स नहीं पूछे गए, बट यू नो इट विल हेल्प यू इफ़ यू कैन रिमेंबर। लेकिन मैंने आपको बताया है, ऐसा नहीं करना है कि हाँ आज उठाया यूर अनंत मूर्ति संस्कारा, बस पूरी स्टोरी भी पढ़ दी नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पहले इंडियन राइटर्स कंप्लीट करने हैं, पहले सबके वर्क्स याद करने हैं, क्योंकि चांसेस 50-60% तो इतने हैं कि सिर्फ वहीं से पूछा जाएगा। उसके बाद चांसेस बनते हैं कि आपसे उनका डिटेल थोड़ा सा स्टोरी, बेसिक सी स्टोरी लाइन वो आपसे समझने की कोशिश करेंगे, तो 20% टाइम उसमें देना है, ठीक है। 80% हो गया। फिर भी अगर बाई चांस आपके पास टाइम बच जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं बचेगा, बच जाता है, फिर आप कैरेक्टर्स करेंगे। मैंने किए थे कैरेक्टर्स, पर वो नहीं आए पेपर में, पर कैरेक्टर्स कर लो, ठीक है। पर कब करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। डू नॉट प्लान वाइजली, डू नॉट मेमोराइज जो आपको लगता है कि नहीं आएगा, पहले वो करो जो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो नहीं हो। अगर आप सब कुछ करोगे ना तो एंड तक जब पहुंचोगे तो इंपॉर्टेंट ही नहीं होगा, तो दैट विल बी वेरी, दैट विल बी बैड, वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। मैं अपनी गलती बता रही हूँ आपको, पहले भी बता चुकी हूँ। PYQs बहुत लेट एनालाइज किए, उस चक्कर में रिविजन नहीं हुआ पेपर में। अभी जैसे मैं आज अभी जैसे एनालाइज कर रही हूँ तो मुझे लग रहा था यार मेरा सही होना चाहिए था, ये गलत कैसे हो गया। सो उसमें मुझे 1 2 3 क्वेश्चंस और मिल गए जो मेरे सही हो सकते थे अगर मैंने PYQs ढंग से रिवाइज किए होते, है ना। ठीक है। तो ये इजी है वैसे। बी, फिर डी, फिर CA का आपको नहीं भी पता तो कोई मतलब इट्स लाइक दे डोंट इवन दे हैव गिवन यू ऑप्शंस इन अ वे कि आपको सिर्फ ये दोनों पता है कि ये क्लोज हैं, तो आपको इतना वो पता होने की ज़रूरत नहीं है कि संस्कार में और द रूम ऑन द रूफ में पहले कौन आया बाद में कौन आया, क्योंकि ये बहुत ही वैसे पास के हैं ये, द रूम ऑन द रूफ और संस्कारा। लेकिन देखो अभी एग्जामिनर ने, देखो इंटेलिजेंट है एग्जामिनर, उन्होंने वो नहीं चाहते कि आपको ये पता भी हो, वो बस इतना चाहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए गोदावरी और महाभारत दूर के हैं, बहुत पुराने हैं, और रूम ऑन द रूफ और संस्कारा रीसेंट है ना। ओके। यार ये क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि मेरे हिसाब से तो मतलब आई डोंट। ओके आई टेल यू द आंसर फर्स्ट। द आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। मेरे हिसाब से इट वाज दैट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट ओके। अब क्योंकि ऑल रिसर्च बीइंग ओरिजिनल एंड अनइंस्पायर्ड, इट इज़ रेयर फॉर अ रिसर्चर टू बिगिन अ प्रोजेक्ट बाय डिराइविंग आइडियाज फ्रॉम प्रेडिसेसर्स। ऐसा नहीं होता है मेरे हिसाब से, बट मे बी होता होगा, पता नहीं। आई कांट रियली आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट अग्री टू द आंसर, एंड नेवर माइंड। वी कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियंस, है ना, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, बहुत कुछ होता है। सो नेवर माइंड। ऑब्वियसली स्टेटमेंट 2 तो सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक मिनट, नहीं 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 नहीं, स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वही जो मैं पहले पॉइंट बोल रही थी, क्योंकि आप देखोगे ना, आप कहीं से तो इंस्पिरेशन लोगे जब आप रिसर्च करोगे। एनीवे आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन। This is very interesting. This I was discussing with one of my acquaintances or friends or whatever you want to call them. And you know, I was like that I did not know. Why would I know which dispatch mein kaun, kahan, kya? But then that person told me one thing, that you could have thought that when India was being colonized and these companies were coming, you had French, you had Portugal, you had English. There was one more. I forgot which one. But anyway, French, Portugal and English, they were fighting amongst each other, right? Arabic उसमें कहीं नहीं है कि people from the Middle East or somebody had come from there. ऐसा नहीं है। तो इसका चांस क्या है कि फ्रेंच क्या इंग्लिश पीपल, वुड्स डिस्पैच आपको पता है कि इंग्लिश टाइम में आया, 1854 का एक्ट है। तो आपको लगता है कि उन्होंने फ्रेंच इंट्रोड्यूस की होगी? फ्रेंच वर लिटरली देयर एनिमीज एट दैट पॉइंट। उस टाइम पे तो शायद नहीं भी थे, पर दे वर फाइटिंग ना, मतलब दे वर नहीं थे एक्चुअली, दे वर स्टिल देयर। तो यू कुड हैव थॉट फ्रॉम देयर कि ठीक है, फ्रांस और इनकी शायद नहीं बनती होगी, यू वुड हैव एलिमिनेटेड फ्रेंच। 3 ऑप्शन में आप फ्रेंच निकाल दो, एक बचा A B and D, अरबिक, इंग्लिश एंड लॉ। इवन तो मैंने ये गलत किया है पेपर में, बट मुझे जिसने मुझे बताया, आई फाउंड दैट दैट पर्सन वाज सेइंग द राइट थिंग एंड आई कुड हैव थॉट ऑफ दैट बिकॉज आई डिड हैव एन आइडिया अबाउट दिस फ्यूड एंड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट इंडिया वाज इन उस टाइम पे, है ना। Question number 17, I will not classify it as a difficult question. If you had solved the previous year questions properly, वहाँ पे ये या तो ऑप्शंस में आ चुके हैं, या शायद उसमें है, क्वेश्चन है, कुछ है। PYQ से ही पहुँची थी मैं इस पे, ऑफ कैनिबल्स पे, एंड वहाँ से मैंने पहला जो विकिपीडिया की लाइन थी वो याद कर ली थी, विच सेड दैट इट इज़ सेट इन ब्राज़ील। पहला उन्होंने पहली चीज़ ही ये बोली है कि ब्राज़ील में है, ठीक है। तो ये मेरा सही था क्योंकि विकिपीडिया की पहली लाइन में लिखा था। रेमंड विलियम्स कल्चर एंड सोसाइटी, ठीक है। आई डिड नॉट नो दिस क्वेश्चन बट आई गॉट दिस राइट।
सो व्हाट हैपन कि आप सी ऑप्शन देखो, इट डिफाइंस कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ। डू यू थिंक दिस कैन बी रॉन्ग? मतलब देखो, रॉन्ग तो सब कुछ हो सकता है, पर कितनी जनरल स्टेटमेंट है यार, आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं कल्चर वे ऑफ लाइफ नहीं होती? तो ये तो सही लग रहा है ना, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। और ऑप्शन एक ही है, ए एंड सी। चलो ठीक है, फिर भी हम बाकी देख लेते हैं क्या है। इट इक्वेट्स कल्चर विद साइंस, डी ऑप्शन। चांस कम है। कल्चर विद साइंस मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा, मतलब आई हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, बट आई डू नॉट रीड अबाउट कल्चर विद साइंस, ठीक है। इट ओवरलुक्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर, इट क्रिटिक्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर। अब इतना तो पक्का है कि ए बी में से एक तो सही होगा, तभी एग्जामिनर ने दो अलग अलग बनाए हैं। मतलब ये काफ़ी गेसिंग वाले पे आ गया, लेकिन ऐसा सोच सकते हो ना आप। तो इट क्रिटिक्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर, इट ओवरलुक्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर। यार एक मिनट, ठीक है। सो अब मुझे इतना पता था कि इनका एक वर्क है कीवर्ड्स, रेमंड विलियम्स का एक वर्क है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स में आई न्यू दैट ही सेड दैट दो कि कल्चर डज नॉट मीन व्हाट द हाई क्लास पीपल डू। ये एक लाइन मुझे याद थी, वहाँ से आई डिराइव्ड कि ठीक है, इट कैन क्रिटिक द आइडिया ऑफ हाई कल्चर, ठीक है। ओवरलुक्स तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कल्चरल उसमें मतलब उसने बात की है इस बारे में, सो ऑब्वियसली इट क्रिटिक्स द आइडिया ऑफ हाई, मतलब ए मुझे पता था। आई एम सॉरी आई सेड आई डिड नॉट नो द क्वेश्चन एंटायरली, नहीं, आई न्यू पहले वाला, इट क्रिटिक्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर। एंड तो ए मतलब तीन ऑप्शंस में था ना, उसके बाद बचा बी सी एंड डी, और उसमें सबसे जनरल था सी, इट डिफाइंस कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ। सो आई वेंट विद दिस एंड आई गॉट दिस राइट, राइट। Who wrote The Labyrinth of Solitude? You should have known this. Octavio Paz, Nobel Prize winner, and Nobel Prize winner की सबसे important work है The Labyrinth of Solitude। और अब आपको ये डिटेल में पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे नोबेल प्राइज विनर्स के जाके डिटेल्स में पढ़ो, नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब जैसे ये पूछ लिए गए ना, अब आपको ऑक्टेवियो पैज के बारे में पता होना चाहिए, द लेबिरिंथ ऑफ सॉलिट्यूड, और उनका डिटेल, और इनके और वर्क्स भी अब आपको पता होने चाहिए। लेकिन बाकी नोबेल राइटर्स के लिए आपने सिर्फ एक, उनका नाम और उनके बेसिक से 2 या 3 वर्क्स याद कर लो, दैट्स इट। और इसमें जो बाकी ऑप्शन है वो भी बता देती हूँ। गैब्रियल गार्सिया मार्की। सो गैब्रियल गार्सिया मार्की आपने डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज लुइस बॉर्गिन से एक बार डिटेल्ड क्वेश्चन, 2 बार डिटेल्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। आई थिंक ऐसा था कि द लाइब्रेरी ऑफ बेबेल, बेबल या जो भी प्रोनाउंसिएशन है, आई एम सॉरी, द लाइब्रेरी ऑफ बेबेल में आई थिंक जो वो है आपका एपिलॉग, एपिलॉग नहीं यार क्या बोल रही हूँ मैं, जो उसका क्या बोलते हैं उसको, एपिग्राफ जो है वो कहाँ से लिया हुआ है, या ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एंड दैट वाज फ्रॉम forgotten, I forgot, आई थिंक इट इज़ द एनाटमी ऑफ मेलनकली, बट यू चेक द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं वहाँ पे करेक्ट कर दूँगी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे गलत याद भी रहा हो सकता है, बट आई थिंक इट्स द एनाटमी ऑफ मेलनकली। जस्ट राइट इट डाउन, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी कि मुझे करेक्ट भी करना है। तो आई थिंक वहाँ से ये क्वेश्चन था कि उसका जो वो है एपिग्राफ है वो कहाँ से लिया हुआ है। तो ठीक है, उसके बाद मतलब दिस वाज एन ईजी क्वेश्चन। लेबिरिंथ, अच्छा गैब्रियल मिस्टल के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, तो दैट्स ओके, आपको नहीं पता, अगली बार के लिए पता होना चाहिए, बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड नाउ, है ना, ऑप्शंस में है। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा पता है क्या, जैसे ऑप्शन में है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे गैब्रियल मिस्टल पिछले 2012 में एक बार ऑप्शन में आ गया तो आपको वो भी पता होना चाहिए, नहीं। ऑप्शंस में ज़्यादा वो पता होना चाहिए जो 2019 से 20-21 यहाँ आए हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मुझे नहीं पता यार, ओवर, अन्युम्बा, तम्बन, लो लियोंग कौन है, मैंने कभी नाम नहीं सुने, पर नुगुगी वो थियोंगो, ये तो मतलब इतने पूछे जा चुके हैं, आपको डिटेल में आने चाहिए। और इनफैक्ट एक बार तो क्वेश्चन इट वाज इन यूजीसी नेट दैट विच लैंग्वेज डिड नगुगी वो थियोंगो शिफ्ट टू, है ना, फॉर राइटिंग एंड एवरीथिंग। और आप पढ़ोगे उसका डिटेल, अगर आपको क्वेश्चन आया आप डिटेल पढ़ोगे कि क्यों शिफ्ट किया, क्या प्रॉब्लम थी, बस बेसिक। अब हमें पता है कि ही वॉज अगेंस्ट राइटिंग इन इंग्लिश, है ना, दैट इज़ वाई ही शिफ्टेड टू गीकुयू आफ्टर राइटिंग सम इंग्लिश वर्क्स, राइट। तो नाउ यू सी कि ये क्या बोल सकते हैं। अभी 4 ऑप्शंस हैं, अब आप अगर थोड़ा सा यू विल थिंक, यू कैन अंडरस्टैंड ये क्या बोल सकते हैं, आपको बेसिक नॉलेज है नगुगी वो थियोंगो की, नाउ यू कैन थिंक। द प्राइमेसी ऑफ इंग्लिश कल्चर्स एंड लिटरेचर्स एंड कल्चर्स, ये तो हो ही नहीं सकता। एक ऐसा इंसान जो इंग्लिश से गिकुयू शिफ्ट करे, वो ऐसा क्यों बोलेंगे, ए तो भाई बिल्कुल नहीं है। सेंट्रलिटी ऑफ अफ्रीका इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, पॉसिबल, है ना। प्राइमेसी ऑफ लिटरेचर इन द सिलेबस,
पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी द फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द हिस्टोरिक कंटिन्यूटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो ही नहीं सकता, नहीं पॉसिबल है। डी और ए तो पक्का गलत है ना, बचा क्या, बी और सी, एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, दैट्स द राइट आंसर। आप देख रहे हो कि आप इस क्वेश्चन से उन्होंने क्या किया, एक तो आपको कंफ्यूज किया कि आप पहले देखोगे उबो और अन्युम्बा, कंफ्यूज हो जाओगे, डर जाओगे, अगला क्वेश्चन पे चले जाओगे, हो सकता है आप नगूगी वो थे होंगे तो पहुंचो ही ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। दूसरा काम वो क्या कर रहे हैं, आपको अगली बार के लिए 2 राइटर्स दे दे कि ठीक है ये लो, अगली बार हम इससे पूछ सकते हैं। अब आपको ओवर अन्युम्बा और तांबन लो लियोंग के बारे में पता होना चाहिए, यू शुड नो, यू हैव टू मेक इट इन योर नोट्स एंड रिमेंबर इट, मेमोराइज इट प्रॉपरली, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी सोशोर लैंग्वेजेस, अब यू शुड हैव नोन दिस। अब आप बोलेंगे कि ऑब्वियसली यार क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है, क्वेश्चन आई कांट से द क्वेश्चन इज ईजी, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी यूज़ की है कि आपको फंसाना, फंस जाओ जाके आप, ताकि आप अगर इफ़ यू नॉट गुड एट अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट आंसर दिस, राइट। नाउ यू नो फर्डिनेंड सोशोर का लैंग एंड पैरोल वाला थिंग, दैट्स वेरी फेमस, हैज़ बीन आस्क्ड ट्वाइस अभी तक। तो अगर आपको वो आइडिया है कि लैंग और पैरोल क्या होता है, देन दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव द आंसर ऑफ, है ना। ओके, इतना पक्का है कि इसमें सी आंसर है, अ सिस्टम ऑफ साइंस। अगर आपने फर्डिनेंड डी सोशोर पढ़े हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ने होते हैं, तो आपको पता होगा, है ना, कि अ सिस्टम ऑफ साइंस तो है, ठीक है। ऑप्शंस 2 हैं जिसमें सी है, ए और डी में से कोई एक सही होना चाहिए। आइदर इट इज़ एन इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर और इट इज़ अ सेल्फ स्टैंडिंग फॉर्मेशन। आपको नहीं लग रहा कि इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर और सेल्फ स्टैंडिंग फॉर्मेशन ये बनाए गए हैं, मतलब इनमें से एक सही है और एक उसका एग्जामिनर ने ऑपोजिट बनाने की कोशिश की है। इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर या फिर सेल्फ स्टैंडिंग। इंटरलॉकिंग मतलब डिपेंडेंसी, चेंजिंग। सेल्फ स्टैंडिंग बिना किसी से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या, मतलब इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। अब सोचो कि ऐसा है, परोल क्या होता है, लैंग और परोल में परोल क्या होता है, कि लैंग जो होता है वो जब इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हेन लैंग इज लाइक द फाउंडेशन, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। परोल इज समथिंग विच गेट्स मॉडिफाइड, क्योंकि वो अलग अलग लोगों द्वारा यूज़ किया जा रहा है, तो वो मॉडिफाई हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जितने उसमें जाओगे, म्यूटेशन जैसे वायरस में होती है ना, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लोगों में चला जाता है, कौन कैसे, किसकी बॉडी कैसे उसको फाइट करेगी, उस हिसाब से म्यूटेशंस आती हैं वायरस में, राइट। तो उसी तरीके से परोल इज अ मॉडिफाइड काइंड ऑफ लैंग, राइट। अगर आपको ये पता है तो इतना पता लग गया कि सेल्फ स्टैंडिंग नहीं हो सकती लैंग्वेज। सेल्फ स्टैंडिंग कहाँ है, मॉडिफाई हो रही है ना परोल में, यही तो बोल रहे हैं वो। तो इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट, एंड दैट इज द आंसर, ए एंड सी। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस यार, प्लीज कॉमेंट एंड प्लीज प्लीज लेट मी नो, है ना। दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यू शुड हैव नोन इट, मतलब ये इतनी बार पूछा जा चुका है, आपको ये मतलब आना चाहिए हर कंडीशन में। इब्राहिम काउली इंपॉर्टेंट हैं, जॉन डन इंपॉर्टेंट हैं, जॉर्ज हर्बर्ट इंपॉर्टेंट हैं, एंड्रयू मार्वल इंपॉर्टेंट हैं। मुझे ये सारे आते थे, मतलब मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा कि हाँ ए का ये है या बी का ये है तो यही होगा, नहीं, आई न्यू ऑल ऑफ देम बिकॉज दिस वॉज ईजी, दिस वॉज वेरी ईजी एंड यू शुड नो इट टू। और अगर मैं आपको कह सकती हूँ कि शायद अगर आपको कोई नहीं आता तो वो रिहर्सल ट्रांसपोज्ड हो सकता है, बट उसके अलावा बाकी तो आने ही चाहिए यार, ये ईजी हैं, है ना। ईजी हैं, पूछे जा चुके हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, बट इस तरीके से पूछे जा चुके हैं कि आप एक्सपेक्टेड हो कि आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए इनके बारे में, इन राइटर्स के बारे में, ठीक है। ओके, ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये मैं ईजी तो नहीं कहूँगी क्योंकि काफ़ी पास पास के हैं ये। अम, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, शशि देशपांडे, हाँ, लेकिन लेकिन ये मैंने अभी देखा, शशि देशपांडे, शी वॉज, आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, मैं ना एक बताऊंगी कि आपको कैसे जाना है, पहले क्या करना है फिर क्या करना है, पर क्रोनोलॉजी सबसे पहले याद करनी है, हम सबसे लास्ट में करते हैं, मैंने भी की है सबसे लास्ट में, पर फिर उसका वो उतना याद नहीं रहती ना। पर शशि देशपांडे, अगर आपको पता होगा कि शशि देशपांडे केम वे टू बिफोर ऑल ऑफ दीज थ्री राइटर्स, मतलब अरुंधति रॉय, किरण देसाई, झुम्पा लहरी तो बहुत पास पास की हैं, और शशि देशपांडे के मच अर्लियर, तो इतना पक्का है कि सी पहले होगा, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। आपको बाकी राइटर्स दे दिए कंफ्यूज करने के लिए पास पास के, पर एक राइटर पुराना दे दिया, और ऑप्शन इस तरीके से बनाए कि आपको अगर ये पता है कि शशि देशपांडे काफ़ी पहले थी तो आप सी ए डी भी आंसर कर सकते हैं, इवन इफ यू डू नॉट नो द क्रोनोलॉजी ऑफ द रेस्ट, राइट। सो ओ ओ ओ ओ अरे कैसे जाएगा वापस, ओ सो ये है सी ए डी बी, इनका आंसर है।
अब आप देखिए, विच ऑफ दीज इज आइडेंटिफाइड बाय एरियल डॉफमैन एंड आर्मंड मैटलार्ट एज हैविंग बीन डिप्लॉयड इन वॉल्ट डिज्नी कॉमिक बुक्स टू प्रोपोगेट इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी। आई हैव नो आइडिया, मैंने ना कभी सुना ना मुझे पता है। पर ठीक है, नहीं पता। अभी पेपर में मैंने तो यार इसका कुछ और ही किया था, पता नहीं क्या सोच के। पर इसका आंसर इन्फेंटिलाइजेशन हो भी सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो यार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वॉल्ट डिज्नी की बात हो रही है, इन्फेंटिलाइजेशन की बात हो रही है। इट इज़ पॉसिबल। पर ये आंसर मुझे नहीं आता, मुझे कॉन्सेप्ट भी नहीं आता है, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा इस बारे में। पर अब आपको भी पढ़ना है। अब इन्होंने दे दिया ना, अब आपको ये जो 4 टर्म्स है ना, डेफिकेशन, इम्पॉवरिशमेंट, इन्फेंटिलाइजेशन, पर्सोनिफिकेशन। देखो यार, पर्सोनिफिकेशन तो होगा नहीं, ये तो बनाया हुआ ऑप्शन लग रहा है ना। बाकी इन तीनों में से ही होगा। इम्पॉवरिशमेंट हो सकता था, डेफिकेशन भी हो सकता था, डिफिकेशन जो भी बोलते हैं इसको, इन्फेंटिलाइजेशन भी हो सकता है। इन तीनों में से थी, पर बहुत ही ऐसे है, फार फेच्ड सा गेस है, नहीं मार सकते इसमें गेस। नहीं आता तो नहीं आता। पर इन्फेंटिल बाद में देखा जब ऑप्शंस तो आंसर देखा तो लगा कि शायद कर देना चाहिए था इन्फेंटिलाइजेशन, है ना। पर ये पढ़ना है। अब एरियल डॉफमैन और आर्मिड मेटल आर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब बिफोर नोइंग एंड बिफोर डूइंग द मेजर मेजर राइटर्स भी जो आप करते हैं, आप प्रीवियस ईयर्स में पहले बेटर हो जाइए, बहुत अच्छे हो जाइए, उससे आपको फ़ायदा आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, चार्ल्स बॉडेलियर्स फ्लावर्स ऑफ ईविल। मैंने आपको बताया कि विकिपीडिया की लाइन से डायरेक्टली उठाया हुआ है कि ये सिंबलिस्ट ऑफ मॉडर्न है, डायरेक्टली। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता था, आप मुझे चार्ल्स बॉडेलियर के बारे में ये पता था कि इनका जो फ्लावर्स ऑफ ईविल है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्रिटिक किया हुआ है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्रिटिसिज्म किस एज में आ सकता है? मॉडर्निस्ट में। नियो क्लासिकल में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि नियो क्लासिकल में तो भी इंडस्ट्री शुरू ही हुई थी ना। उसके बाद रोमांटिक में भी अगर होता तो भी मैं सोच सकती थी। पर ये मॉडर्निस्ट में हो सकता है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निस्ट इज नॉट अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एवरीथिंग। इट्स मोर अबाउट बीइंग कंफ्यूज, बीइंग डिसल्यूजन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स चल रहे हैं, आपके कोल्ड वॉर आ रहा है, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। तो इट्स मोर अबाउट कंफ्यूजन, दैट मेंटल स्टेट एंड एवरीथिंग, rather than critiquing industrialization. Of course we are critiquing industrialization, पर जिस लेवल पे मॉडर्निज्म पे हुई, उतनी पोस्ट मॉडर्निज्म को अगर आप बोलो ना कि पोस्ट मॉडर्निज्म को सोच के कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले याद आता है, तो नहीं आता है। सबसे पहले अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन याद आता है तो या तो वो मॉडर्निज्म में आता है, या फिर वो आता है आपका रोमांटिक या विक्टोरियन एज में, आप कह सकते हो। पर नॉट नॉट इन द पोस्ट मॉडर्न, डेफिनेटली। डी पक्का गलत है और सी पक्का सही है। क्या ऑप्शन बचता है आपके पास? बी एंड सी, है ना। अब ये मुझे खुद नहीं पता कि जैसे आप सोचो फ्लावर्स ऑफ ईविल, इसका क्या मतलब निकल रहा है टाइटल से? फ्लावर्स ऑफ ईविल कितना सिंबॉलिक टाइटल लग रहा है, अपने आप में तो एक्सप्लेनेटरी नहीं है, तो ऑब्वियसली किसी चीज़ का सिंबल होगा, क्योंकि अब मुझे पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में स्टोरी। तो सिंबलिज्म एंड मॉडर्निज्म, मॉडर्निस्ट, ये दो चीज़ें। ऐसे करोगे आप इसको आंसर। अब देखो, हमने डिस्कस कर लिए 25 क्वेश्चन, 100 टोटल हैं। आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन में गैस हो सकता था, कौन से क्वेश्चंस में आप नॉलेज लैक करते हैं, कि मैंने आपको बता दिया कि क्या आपको, अच्छा हाँ, चार्ल्स बॉडेलियर आपको पता होना चाहिए था, इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिए कि आपको ये आने चाहिए थे। तो अब आपको ये देखना है कि आपकी नॉलेज में कमी थी, या आप पेपर में कंफ्यूज होते हैं, या मतलब आप वो गेस नहीं कर पा रही हैं। वो तब होगा जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज करोगे। मैं इतनी बार बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं करती थी यार, और मैं नहीं चाहती कि आप वही गलती करो जो मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि क्यों करनी है आपको वही गलती जब मैं कर चुकी हूँ और मैं बोल रही हूँ। डोंट डू द सेम मिस्टेक ना, कोई फ़ायदा नहीं रह गया फिर। तो आप वो गलती मत करो। PYQs, दे विल सेल यू थ्रू, ट्रस्ट मी विद इट, ट्रस्ट मी विद इट। क्योंकि कितना कोई भी नहीं पढ़ सकता यार। हमें हमेशा, हम ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार हमें नहीं पता चल रहा है, बाकी दूसरे इंसान बेटर पढ़ रहे होंगे शायद, उन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं होता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इंटेलिजेंस में बहुत फ़र्क नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता है, आई अंडरस्टैंड, बट वो हार्ड वर्क से कवर हो जाता है ना। सो यू हैव टू हैव द डायरेक्शन। आपको पता होना चाहिए आपने जाना कहाँ है, फिर आप वो तेज़ दौड़ के पहुँच ही जाओगे। अगर दूसरा बंदा फिजिकली स्ट्रांग भी है, आप नहीं हो मान लीजिए, पर आप अगर मेहनत करोगे, रोज़ भागोगे, तो आप जल्दी पहुँच जाओगे उससे। इवन इफ यू थिंक कि अदर पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उनको सब कुछ याद रह जाता है। ऐसा यार कोई भी नहीं होता है। जो बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? पता है, मुझे ऐसे कोई बोलता था कि हाँ बस 2-3 बार रिवाइज़ किया और याद हो गया। मुझे अपनी ना एबिलिटी पे डाउट होने लग गया था कि मैं मतलब मुझे इतनी भी इंटेलिजेंस नहीं है कि मैं इतनी जल्दी याद कर लेती हूँ। शायद नहीं है, पर हार्ड वर्क है, वो आपको भी करना है। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है या कुछ, आई डोंट नो, क्यों मैं इतना फिलोसॉफिकल सी बातें कर रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। एनीवे, कीप वर्किंग हार्ड, सब कुछ हो जाता है। पार्ट 2 आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
बट ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी। स्टिल आई एम नॉट श्योर, क्या पता। तो देखते हैं, आई विल ब्रिंग द पार्ट 2। कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि या तो आपको शायद समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। अब आप खुद एनालाइज़ करो, क्योंकि क्या है ना, हम 2 अलग-अलग ह्यूमन्स हैं। आप देख रहे हो, मैं अपना एनालाइज़ कर रही हूँ। मैंने कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नोटिस किया है, आपने कोई और पर्टिकुलर ट्रेंड नोटिस किया होगा। हो सकता है मैंने वो ट्रेंड नोटिस नहीं किया हो, क्योंकि 2 दिमाग चल रहे हैं ना, हम डिफरेंटली सोचेंगे, हम डिफरेंट ह्यूमन्स हैं। तो जो ट्रेंड आप नोटिस कर रहे हैं, वो दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रेंड। ऐसा नहीं होता है कि हाँ, मतलब ये मेरे को ये शायद लग रहा है या नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो डिफ़िकल्ट वर्डेड स्टेटमेंट्स होती हैं, वो यूजुअली इंग्लिश लिटरेचर में गलत होती हैं हमारे पेपर में, जबकि दूसरे एग्ज़ाम्स में ये उल्टा है। अगर बाकी एग्ज़ाम्स में, जैसे और भी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स अगर मैं देखती हूँ, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ डिफ़िकल्ट सा वर्ड्स हैं, बड़े सुंदर से सेंटेंस है, वो यूजुअली सही होता है। इंग्लिश में ये ऑपोज़िट है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे प्रोफ़ेसर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो इंग्लिश ही तो पढ़ा रहे हैं, तो वो वोकैब्युलरी से खेलना उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। दे विल ट्राई टू कन्फ्यूज़ यू बाय गिविंग यू डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अच्छा, ये हमेशा सही नहीं होता, पर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, देन यू कैन गो फॉर दिस, राइट? ओके, देन आई थिंक आई हैव सेड इनफ। कुछ और बोलना होगा तो मैं किसी और वीडियो में बोलूँगी। आई एम सो सॉरी। Okay, thank you so much for watching, so very much for watching, and I really hope कि आप PYQs को you take it seriously, because people really don't take it seriously। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी जो PYQs को seriously नहीं लेती थी, and I have been regretful। So I just hope कि आपको वो regret ना हो, and all the best। I am sure you will do well, and just keep going, just keep going, that will help very much। All right then, bye bye।